Hello and welcome back to this channel. The questions are already in front of you. We are going to solve these questions today in this video. Okay. So overhead is given. Determine by substitution if the following. 3 is the root of 8x is equals to 24. 4 is the root of the equation 2x minus 3 is equals to 5. Minus 3 is the root of the equation x plus 12 is equals to 9. Minus 3 is the root of the equation 2 into x plus 4 is equals to 14. So you simply have to determine by substitution. That means you have to substitute the value of the unknown. देखो value already हमें दे दी गई है ना. So we simply have to substitute the values. Nothing else we are supposed to do here. ठीक है. यहाँ पे already हमको value दी गई है of the unknown variable. We simply have to substitute the value, right? So instead of finding the value in order to find out that whether the given number is the root of the equation or not, will be a very big process. Okay. Finding the value. Instead of finding the value, you can substitute. Right. So यहाँ simply यहाँ हम substitute करेंगे instead of doing the long cut. Long cut क्या है? जैसे पूरा value find करो तो एक बहुत बड़ा headache है. वैल्यू से अच्छा है कि हम सब्स्टिट्यूट कर लें. अगर LHS और RHS आपस में इक्वल आते हैं, यस दैट नंबर विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. और अगर नहीं आते, नो दैट नंबर इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, विल नॉट बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, लेट्स बिगिन विथ दिस topic today. I'm going to finish off this exercise today and we'll move on to this part. Okay, so I have prepared 2 slides, है ना. Very interesting questions, I must say, and very easy sort of problems, I must say. This also because I literally was able to solve these questions. So that is why they are easy for me. You can also try along with me. So 3 is the root of 8 of the equation 8x is equals to 24. मैंने पहले ही कहा है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो. x की वैल्यू 3 बताई गई है तो सब्स्टिट्यूट कर लो. 8 3 24. यहाँ x क्या था? यहाँ x था 3 अकॉर्डिंग टू देम, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24. 24 इज इक्वल्स टू 24. सिंस द LHS इज इक्वल्स टू द RHS, तो यस करेक्ट, वेरी करेक्ट. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब दिस इज द करेक्ट, this is correct that 3 is the root of this equation. Okay, you can write yes. What is the root of this equation 2x minus 3 is equals to 5? Let's find out. 2 into 4 minus 3 is equals to 5. You can do ये जैसे कि 2 4 is 8 minus 3 is equals to 5. 8 minus 3 is 5 is equals to 5. That means LHS is equals to RHS. तो हाँ 4 is the root of this equation. ठीक है, 4 is the root of this equation. You can write yes. Now minus 3 is the root of the equation x plus 12 is equals to 9. अच्छा, तो let's see. Minus 3 plus 12 is equals to 9. Minus plus is minus. 12 minus 3 is 9. ये पॉजिटिव साइन है. ठीक है, सो 9 इज इक्वल्स टू 9. LHS RHS की इक्वल आ रहा है, तो यस. अब बोल रहे हैं कि minus 3 is the root of the equation 2 into x plus 4 is equals to 14. Let's check. So 2 into this x की वैल्यू क्या दी गई? -3 plus 4 is equals to 14. So 2 3 is 6. Minus 6 plus 8 is equals to 14. Minus plus is minus 2. ये क्या है? ये पॉजिटिव साइन आएगा. इस 2 इज इक्वल्स टू 14. क्या 2 14 के इक्वल है? नहीं. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS.
So since LHS is not equal to RHS, you are going to say no. Three is the root of this equation. X plus 1 upon 2 plus x minus 1 upon 2 is equals to 3. Let's see. X की वैल्यू 3 दी गई है. 3 plus 1 upon 2 plus 3 minus 1 upon 2 is equals to 3. तो 3 plus 1 4 upon 2 plus 2 upon 2 is equals to 3. Okay, so you can cancel out them. 2 1s are 2, 2s are 4, 1s are 2, 1s are 2. So 2 plus 1 is 3. So 3 is equals to 3. LHS is equals to RHS. Yeah. Yes. Next question. Minus 1 is the root of minus 2x plus 1 is equals to 0. अच्छा, let's see. minus 2 into minus 1 plus 1 is equals to 0. ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल. माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 2 पॉजिटिव 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. तो 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 3 इज इक्वल्स टू 0 नहीं, 3 इक्वल 3 0 के इक्वल नहीं है. LHS जो है वो मेरा डिफरेंट है, RHS जो है वो मेरा डिफरेंट है. तो नो, माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. माइनस 1 इस इक्वेशन की रूट नहीं है, सिंस माई LHS इज डिफरेंट एंड सिंस माई RHS इज ऑल्सो डिफरेंट. Are you understanding this thing? So like this only you are going to substitute the value. They have already given that you have to substitute. By substitution, by means of substitution, that means आपको वैल्यू पुट करके फाइंड करना. राइट, आर यू गेटिंग? हमें सिंपली जो होती है, हमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना है कि क्या ये सही है कि ये नंबर इस इक्वेशन की रूट है. तो यू सिंपली हैव टू सब्स्टिट्यूट. अगर आपका LHS आपके RHS से इक्वल आता है, बोथ साइड्स आपके बैलेंस रहते हैं, तो यस. बट अगर बोथ साइड्स बैलेंस्ड नहीं है, बोथ साइड्स आर डिफरेंट, सो एब्सोल्युटली नो. लाइक यू कैन सी, यहाँ मेरा LHS कुछ और है, RHS कुछ और है. लाइक 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट करेक्ट. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है, सो नो नो नो. 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा कह रहे हैं. 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. यहाँ मैं सिंपली अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. नथिंग एल्स आई एम डूइंग, नथिंग न्यू आई एम डूइंग एक्चुअली. सो 5 माइनस 3 इज 2 इंटू 5 माइनस 2 इज 3 इज इक्वल टू 6. 2 3 6, 6 इज इक्वल टू 6. यानी मेरा LHS और RHS दोनों सेम है. तो मैं क्या कहूँगी? यस, 5 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो यहाँ क्या सेम नहीं था? D नहीं था और F नहीं था. राइट, ओनली D एंड F, आई थिंक सो. यस, ओनली D एंड F वर नॉट, मतलब D एंड F आर इनकरेक्ट. ओके, सेकेंड वाला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को देख के लगता है कि हम सिंपली इन्हें ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे. राइट, यहाँ हमें सिंपली ट्रांसपोज करना है, यानी वन नंबर को द अदर साइड यू हैव टू शिफ्ट. You have to shift one number on the another side. That's all you need to do. Nothing else. You can do it, right? X minus 5 is equals to 4 दे कह रहे हैं. X minus 5 is equals to 4. तो क्या करोगे? इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव 5 हो जाएगा. 9. X is equals to 9. You have to find the value of the unknown variables given in these equations. ठीक है, क्या कह रहे हैं? Find the roots of the following equations. रूट्स बोले तो हमें जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी, नथिंग एल्स.
So you can use any method. You can use span balancing method. You can use transposition method. Whatever method seems easier to you. Less time consuming to you. Whatever method. X minus 7 is equal to 9. क्या कर सकते हो कि इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, राइट. 9 plus 7 is, of course, it is 16. X is equals to 16. Okay. X minus 2 is equals to 2. X minus 2 is equals to 2. Very easy sort of equations they are. X is equals to 4. फिर बोल रहे हैं कि x minus 9 is equals to 4. X minus 9 is equals to 4. तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा. देखो ट्रांसपोजिशन या फिर पैरेललाइजिंग दोनों में हमें नंबर को एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करना ही होता है, राइट. ये चीज़ दोनों में कॉमन है. तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी हम किसी भी नंबर को फ्रॉम वन साइड टू अनदर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन हो जाता है चेंज. द साइन चेंजेस. यानी अगर इस साइड वो पॉजिटिव है तो दिस साइड इट विल बी नेगेटिव. इस साइड वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से तो इस साइड यानी इक्वेशन की दूसरी साइड या फिर उसकी ऑपोजिट साइड वो डिवाइड होगा. समझ रहे हो? तो लाइक दिस सो ट्रांसपोजिशन पेन बैलेंसिंग आर नॉट न्यू टू अस. सो x इज इक्वल्स टू 13 इस वाले इक्वेशन में. बहुत इजी है. आई थिंक वी कैन डू दैम इजीली. I will do till h and from I to p you are going to do. ठीक है, क्योंकि सेम है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. फिर जो भी आंसर मिलता है, लाइक वट एवर आंसर यू गेट, यू आर फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन and I will definitely see them. Okay, so let's move on the other side. डी तक हो गया ना. ई टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10. टी माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 10 ऐसा वो कह रहे हैं, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 6 टी इज इक्वल्स टू माइनस 6. टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6. टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 20. यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2. ठीक है. माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 2 18 माइनस 18. पी इज इक्वल्स टू माइनस 18. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. एल माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 70. एल माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 70. पॉजिटिव 60 हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 10 माइनस 10 विल कम. एल की वैल्यू जो है वो आएगी माइनस 10. ठीक है. लास्ट पार्ट फॉर मी. y माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 30. y माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस. यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी. So this 14 that side will be positive since it is negative over here. Am I correct? तो ये माइनस 30 है. माइनस प्लस माइनस होता है. 30 माइनस 14 क्या हो जाएगा. 30 माइनस 14 विल बी एग्जैक्ट 16. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16. साइन ऑफ द बिगर नंबर इज गोना कम. सो माइनस 16 विल बी योर आंसर. Minus 16 will be your answer for this question, for this problem. Okay. H y minus 16 will be your answer. ठीक है. क्यों 30 is bigger than 14? So the sign of the bigger number is 1. Okay, next.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इधर भी हमें रूट्स फाइंड करनी है। Here too we have to find the roots. Not a big deal, we can do it, right? Let's do it then. 4x plus 5 is equals to 17. What you can do is, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 17 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12. 4x is equals to 12. ठीक है. What you going to do is, ये जो है, ये 4 जो है, what you going to do? What you going to do? You going to shift this 4 this side. 4 was the 4, 3 is the 12. x की रूट आ जाएगी 3. B वाला भी similar sort of question. It is not a big deal. Okay. B is also a similar sort of question. Three x plus 17 is equals to 32. Minus 17. हम जब ट्रांसपोज करते हैं, जब हम whenever we shift any number from one side to another side, तो हम हमेशा उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं. We always change its sign, right? हम हमेशा जो है अपने साइन को चेंज कर देते हैं. Am I right? So 32 minus 17 is 15. So 3x is equals to 15. 3 1 3, 5 15. x की वैल्यू आ जाएगी 5. समझ गए? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बट इफ यू हैवंट, सी वाला है 2c plus 9 is equals to 19. c plus 9 is equals to 19. So ये 9 इधर जाइए आप. 19 minus 9 10. 2c is equals to 10. 2 1 2 5 10. c की वैल्यू आ जाएगी 5. ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी 5. नेक्स्ट d वाला बोल रहे हैं 3y minus 11 is equals to 4. ये हो जाएगा प्लस 11. 3y equals to 15. ये इधर हो जाएगा. You can see this 3 is getting multiplied with y. y के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है इस साइड में. तो दैट साइड जब मैं उसको शिफ्ट करूंगी, इट विल बी इन डिवीजन. क्या होगा? ये डिवाइड होगा दैट साइड. जब भी हम किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है. जैसे लाइक यू कैन सी कि y के साथ ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो जब मैं उसको नेक्स्ट साइड शिफ्ट करूंगी तो ये डिवीजन में होगा. तो 3 1 3, 5 15. तो क्या वैल्यू आ गई? 5 आ गई वैल्यू. y की वैल्यू 5 आएगी. You can try E and F on your own. I think similar sort of questions they are. I will show you G, H, I, J, K, L, M, N, O and P. ठीक है, बस E और F को खुद से ट्राई करना. ऑलराइट, चलिए. G वाला 16a minus 3 is equals to minus 5. ओके, मैंने क्या किया? -3 को मैंने पॉजिटिव बना दिया उस साइड. माइनस प्लस ऑफ कोर्स माइनस होता है. 5 minus 3 is 2. -2. 16a is equals to -2. दिस साइड डिवीजन में हो जाएगा. क्यों होगा डिवीजन में? क्योंकि इस साइड वो था मल्टीप्लिकेशन. सो 2 1 2 8 16.
-1/8 विल बी योर आंसर फॉर जी पार्ट। अब आते हैं हम अपने एच पार्ट पे, दैट इज y/10 -12 इज इक्वल टू 8। y/10 है, y/10 -12 इज इक्वल्स टू 8। क्या कर सकते हो कि ये जो -12 आपको दिख रहा है इधर पे, जो -12 आपको दिख रहा है इधर पे, यू शिफ्ट दिस साइड, ये हो जाएगा +12, है ना। 12 + 8 इज यार 20। y/10 इज इक्वल्स टू 20। 10 जो है वो y के साथ डिवीजन में है, तो इस साइड वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 20 × 10 200 विल बी योर आंसर। सिंपल, इजी। 8x इज इक्वल्स टू 6x + 10। अब इधर क्या करोगे? व्हाट शुड यू डू हियर? व्हाट विल यू डू हियर? यहाँ तो दोनों साइड वेरिएबल दिए गए हैं। हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ऑफकोर्स यहाँ भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं सब में हम ट्रांसपोजिशन मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। यू इवन यूज पेन बैलेंस मेथड। देखो, पेन बैलेंस मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चीज़ हम वन साइड ऑफ द इक्वेशन करते हैं उसको हमें अदर साइड भी रिपीट करना होता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जो हम एक साइड कर रहे हैं ऑपरेशन, उसको दूसरे साइड भी करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ किसी भी नंबर से 3 को ऐड कर रही हूँ तो उधर मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अगर मैं इस साइड 3 को ऐड कर रही हूँ तो दिस साइड ऑल्सो आई विल हैव टू ऐड। ठीक है, अगर इस साइड में 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस साइड में मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेम ऑपरेशन हमें दोनों साइड करना होता है। चाहे अगर 3 को इधर ऐड कर रहे हो इधर भी 3 को ऐड करो, अगर 5 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर भी 5 को मल्टीप्लाई करो। मतलब आप जो अपने RHS पे कर रहे हो उसको LHS पे भी करो, और जो आप अपने LHS पे कर रहे हो उसको RHS पे भी करो, ऐसा है। तो दिस इज द पेन बैलेंस मेथड, और हम ट्रांसपोजिशन में सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो जैसे यहाँ दिया गया है 8x इज इक्वल्स टू 6x + 10। 8x इज इक्वल्स टू 6x + 10 हम यहाँ भी ट्रांसपोज करेंगे। पहले तो हमें इस 6x से छुटकारा पाना है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 6x। सो व्हाट यू गोइंग टू डू, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। 8x - 6x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। आप कहोगे कि यार उधर सब्ट्रैक्ट क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ये, राइट। 6s जो है वो इधर पॉजिटिव है। जब मैं उसको दूसरे साइड शिफ्ट करूंगी तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग यार, चाहे पेन बैलेंस हो चाहे ट्रांसपोजिशन हो, अकॉर्डिंग टू एनी मेथड इट्स साइन विल चेंज। उसका साइन जो है वो चेंज होगा। तो 8x - 6x 2x है। 2x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 2x is equal to 10. Now it is getting multiplied with x. So that side will be divided by 10. 2 and 2 5 are 10. Then x की वैल्यू आ गई 5। Easy, simple, easy, simple. J part, please try on your own. It is a similar sort of question, so I'm not going to try. I have already tried. K वाला, लेट्स सी K वाला -p इज इक्वल टू 2 + p, -p इज इक्वल टू 2 + p। इधर क्या करना है, ये भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हो कि p जो है वो यहाँ पे 2 के साथ ऐड हो रहा है, तो मैं इस p को इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो ये इस p के साथ -p के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 2। देखो, दे आर लाइक टर्म्स सो दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। दोनों लाइक टर्म्स है, यानी कि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो p + p इज इक्वल्स टू 2, p + p इज इक्वल्स टू 2p, -2p इज इक्वल्स टू 2। यहाँ शिफ्ट कर दीजिए -2p को, -2 को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, द मोमेंट यू नीड टू शिफ्ट -2 टू द अदर साइड इट विल गेट कैंसिल्ड। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ p के साथ मल्टीप्लिकेशन में,
सो -1 विल कम एज योर आंसर। इस p की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ओके, 3 × x+1 = 6। ठीक है, ये एक रूल है कि जो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर दिए गए थे, जो भी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर दी गई होती हैं, जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है वो हमेशा उन चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो 3x + 3 क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, 3x + 1 के साथ हुआ 3 = 6। तो क्या कर सकते हो कि ये जो 3 है इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, नेगेटिव हो जाएगा। यस, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ बचेगा 3x = 3। फिर से यहाँ ट्रांसपोज कर दो, डिवाइड होगा, 3 × 3 = 3, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ दिया गया है 30 = 6 × 8 + y। ओके, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। 30 = 6 8 = 48 + 6y। ठीक है, 30 = 48 + 6y। क्यों? क्योंकि 6 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों के साथ। 6 8 = 48, 6 × y 6y। ठीक है, 48 + 5 क्या हो जाएगा, 30 = 48 + 6y। ट्रांसपोज कर दो इधर, ये यहाँ हो जाएगा -6y, यही 6y यहीं बचेगा। 48 - 30 कीजिए, 18, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज गोना कम, -18 = 6y। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 6 को, 6 × 1 = 6, 3 × 18। y की वैल्यू आपकी जो भी वेरिएबल था, y था ना यहाँ, y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई -3। ओके, लाइक दिस विल टू सॉल्व। टू टी + 3/7 = 4। 2t + 3/7 = 4। 7 को यहाँ ट्रांसपोज कर दोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 7 4 = 28, 2t + 3 = 28। 3 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ एडिशन में है, मतलब ये पॉजिटिव है इस साइड। अगर ये साइड पॉजिटिव है तो दूसरे साइड ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। 28 - 3 = 25, 2t = 25, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 25.2 हो जाएगा। यू कैन कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो Q/R/D यानी क्वेश्चन बाय रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो आपका रिमाइंडर है इधर क्या है, 1 है आपका रिमाइंडर, अपॉन डिवाइजर इज 2 एंड योर क्वेश्चन इज 12। सो 12/1/2 विल बी योर आंसर। W/3 + 5 = 20। W/3 + 5 = 20, -5 15। W के साथ 3 डिवीजन में है तो यहाँ जाके वो 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, आंसर विल बी 45। ठीक है, अब P वाला खुद से ट्राई करना है या मैं बता दूँ? अच्छा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व P till P फ्रॉम G to P, है ना। सिर्फ E और F खुद से सॉल्व करना है, बाकी मैं बता रही हूँ क्वेश्चन। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व P। 3 × x + 5 = 9। ठीक है, तो 3x + 15 = 9। तो यहाँ शिफ्ट कर दो,
6 माइनस 6 3x 6 3 यहाँ से 3 3 2 से 6 -2 विल बी योर आंसर। आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। वाओ, वी हैव फिनिश दिस स्लाइड सक्सेसफुली। सो यू हैव टू डू सेकेंड वाले का I से लेकर P तक कर लेना एंड यू कैन गिव मी द आंसर। और इधर थर्ड वाले में E और F कर लेना। ओके So before I begin solving these questions, very first thing I would like to tell you कि I am not going to solve I, J and K. I am going to make one separate video for these. Okay. So अभी के लिए I am going to solve A, H, मतलब A से H तक, from A to H, from A till H. Okay. X upon 6 is equals to 5. ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। 30 x इज इक्वल्स टू 30। उन्होंने यहाँ कहा ही है, दे हैव गिवन अ मेथड कि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन होता है, इफ एनी स्पेसिफिक मेथड इज मेंशन्ड इन दैट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, then you have to use that method only. You have to make use of that method only. You cannot use any other method of your choice, because in that question a specific method is given to you by which you have to solve it, with the help of which you have to solve the sums, ठीक है। You are not going to make use of any other method of your choice or else your marks will be deducted. जो मेथड दिया गया है, चाहे वो अगर यहाँ पे पेन बैलेंस मेथड दिया होता, मुझे पेन बैलेंस से ही सॉल्व करना होता, बट यहाँ ट्रांसपोजिशन दिया गया तो मैं ट्रांसपोजिशन से ही करूँगी। आई हैव नो अदर चॉइस, आई हैव टू यूज ट्रांसपोजिशन मेथड ओनली। सो यू मस्ट नो ऑल द मेथड्स, चाहे वो ट्रांसपोजिशन हो चाहे वो कोई भी मेथड हो, ठीक है, पेन बैलेंस हो। ऑल्सो इफ यू नो एनी अदर मेथड अदर देन दीज टू, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेथड, विच एवर मेथड यू हैव कमेंटेड। ओके, आई मेक यूज ऑफ दैट मेथड इन माई वीडियो। ओके, अभी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड देम, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू अपलोड मोर, सो प्लीज कीप सजेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बी वाला, 10 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3। क्या बोल रहे हैं कि 10 जो है इट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि प्लीज यूज ट्रांसपोजिशन मेथड, मेक यूज of transposition method only, don't make use of any other method other than transposition method. So ये जो 3 है, 10 is equals to x upon 3, you can shift this 3 that side, 10 into 3 30, again x की वैल्यू मिल रही है मुझे 30, ठीक है। सी x upon 4 is equals to 1 upon 2, x upon 4 is equals to 1 upon 2। तो इस 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इंटू 4 हो जाएगा, ये 2 × 2 2 × 4 1 × 2 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। देख सकते हो कि ये जो 4 है वो एक्स के साथ यहाँ डिवीजन में था, तो दिस साइड इफ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस 4 इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर इस साइड 4 मेरे एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो दैट साइड विल बी मल्टीप्लाइड फॉर श्योर, ठीक है। सो ये हमने किया, x अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 4, x अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ शिफ्ट कर दो -3 को, यहाँ देखो x के साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -12, x इज इक्वल्स टू -12, डी वाले की आंसर है -12। अब दिया गया है x अपॉन -7 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इंटू -7, तो -28 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, -28 आ जाएगी x की वैल्यू। f वाला देखते हैं, x अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 3, तो क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 विल कम फॉर द f पार्ट,
जी वाला देखते हैं, y अपॉन -12 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ शिफ्ट कर दो, ये अगेन मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, -36 विल कम एज योर आंसर। ठीक है, अब रिमेनिंग इज द h पार्ट, p अपॉन -7 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ शिफ्ट कर दो, अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो सब मल्टीप्लाई हुआ है, सो -56 विल कम एज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व I, J, K. I am going to make a separate video for this. Alright, already told. Now sixth question I am going to solve. Solve by any method. अब देखो इधर they haven't mentioned any specific method you have to use. So you can use any method of your choice. You can either use transposition, you can either use pen balancing, whatever method seems easier to you or less time consuming, I must say. जैसे कि for me, transposition method is the best because it is less time consuming. For you, maybe pen balancing is the best, right? I don't know anybody's choice. You can make use of any method over here. I'm using my method. ठीक है, I like transposition method, so I'm going to use transposition. Okay, अब दिया गया है solve by any method, मतलब we are free to use any method, कोई भी method अपनी choice। If you know any other method other than transposition, pen balancing method, you can use that. Okay, अब यहाँ देखो 2/3x इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ देखिए कि जो आपका 2/3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो फ्रैक्शन है ना 2/3 वो आपके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस साइड इसको शिफ्ट करूँगी तो ये डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाइंग रेसिप्रोकली। तो 12 इंटू 3/2, 2 1 2 6 12, 18 विल कम एज द वैल्यू ऑफ योर x। आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट। 3 - y/4 इज इक्वल्स टू 9। तो 3 - y/4 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ ट्रांसपोज कर दो 4 को, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 9 4 = 36। 3 - y इज इक्वल्स टू 36। 3 - y इज इक्वल्स टू 36। तो क्या करेंगे इधर? नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? नाउ यू कैन सी कि ये जो 3 है वो यू कैन शिफ्ट दिस 3 द अदर साइड। इधर वो पॉजिटिव है तो दैट साइड विल बी नेगेटिव। तो -3 कर दीजिए। 36 - 3 विल बी 33। -y इज इक्वल्स टू 33। अब -y यानी -1y। -y बोले तो -1y। तो यहाँ एक -1 है ना। तो इस -1 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे y के साथ, वो क्या हो रहा है? -1 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट साइड इट विल बी डिवाइडेड बाय 33। तो -33 विल कम एज योर आंसर। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा -33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × x - 1 + 6 इज इक्वल्स टू 12। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और एम आई मिसिंग? नो, सी पार्ट। x + 2/5 इज इक्वल्स टू 20। तो ये भी इसी टाइप का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ जो है ऊपर ऐड हो गया है। यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा -50। x + 2 इज इक्वल्स टू 50। ओके, wait, sorry, it is in division, sorry, it is in division, that side will be multiplied. Okay, wait, be careful, okay, because I am explaining since long, so my mind is just messed up. Sorry for this thing. x + 2/5 इज इक्वल्स टू 20। ये 5 यहाँ डिवीजन में है तो इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। वेरी सेम,
राइट। इस क्वेश्चन के बहुत ही आसपास लगता है ये क्वेश्चन। 100, 20 into 5 is 100. नाउ x plus 2 इज इक्वल्स टू 100। तो ये 2 जो है इसको यहाँ डाल दीजिए। 100 माइनस 2 इज 98। x इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 90। वेरी सिमिलर टू बी पार्ट। तो सी पार्ट हम खुद भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट्स ओके, आई हैव सॉल्व दिस नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो हम क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस इज माइनस, 6 minus 3 is 3. Sign of the bigger number is gonna come, so a positive sign will come. 3x is equals 3x plus 3 is equals to 12. ठीक है, क्या करोगे, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो इसका साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। ओके, 12 minus 3 is what? Yes, exactly, it is 9. तो 9, 3x is equals to 9. यहाँ ट्रांसपोज कर दो 3 को, डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि एक्स के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में था। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। यस, 3 आएगी वैल्यू। ओके, आई एम सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ई वाला भी करके बताती हूँ। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 22। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 22। यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 4 को, -4 हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, -4। करेक्ट। तो 22 माइनस 4 18 होता है। 3x इज इक्वल टू 18। यहाँ शिफ्ट कर दो 3 को, 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा 18। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। राइट, एक्स इज वैल्यू विल बी 6। एफ वाला देखते हैं। एफ इज सिमिलर टू डी, बस यहाँ कुछ ना एडिशन में है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ना कुछ सब्ट्रैक्शन। बाकी तो अगर देखा जाए तो बहुत काफ़ी हद तक सेम है। 7 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 63। तो क्या कर सकते हो, 14x माइनस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल्स टू 63। इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा, 63 प्लस 35 हो जाएगा। ऐड करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। 98। 63 प्लस 35 इज 98। 14x इज इक्वल्स टू 98। तो क्या होगा कि ये जो 14 है वो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस साइड विल बी डिवाइडेड। 14 1 ज़ा 14, 7 ज़ा 98। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑल राइट, एफ पार्ट 7 विल बी योर आंसर फॉर द एफ पार्ट। समझ गए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, सो यू हैव डन दिस। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया है। जो पार्ट मैंने मतलब द पार्ट आई हैव गिवन यू टू ट्राई, यू कैन ट्राई दोज पार्ट्स ऑल्सो। ओके, इफ यू वांट। IJK वाला जो है 5th क्वेश्चन का है ना, सॉल्वर ट्रांसलेशन, आई विल सॉल्व दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।